As we heard, as Brother Danny said, we all get tempted at times. और जैसे हमने सुना, जैसे भाई डैनी ने कहा, हम सब कभी ना कभी इस प्रलोभन में पड़ते हैं। I've been tempted so many times, and there are times I yielded even to the temptation of discouragement. और मैं खुद कई बार इस प्रलोभन में पड़ा हूं, और कई बार मैं इस प्रलोभन के उसके अधीन हो गया हूं। But I've seen God is so faithful to lift us, each one of us, because He loves and cares for us. पर मैंने देखा है परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, और वो हमें उठाता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। When we are discouraged, we may even look into other humans, thinking and hoping that we'll get a encouragement from different sources. और जब हम निराश होते हैं तो कई बार हम दूसरे लोगों की ओर देखते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि और लोगों की ओर से शायद हमें प्रोत्साहन मिलेगा। And there are times we think that when we make people may get tired sometime to encourage us, even though in spite of our failures and falling many times. Sorry, can you repeat? People may get tired in helping us at the time we fall often and discouragement. और लोग हर बार जब हम गिर जाते हैं, हमको प्रोत्साहित करते करते लोग कई बार थक जाते हैं। But God gets never tired. He never gives up on me and each one of us to encourage us. पर परमेश्वर कभी भी इस बात से नहीं थकता, वो कभी भी हमसे आशा नहीं खो बैठता, हमेशा वो हमें प्रोत्साहित करता है। There are two verses, Isaiah 42:4, we don't need to read there, but Isaiah 40:28, you can read there, brother. और Isaiah 40:28. यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 40 अध्याय और 28 वचन। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। So God never get tired when we go to Him. How often we go to Him? He is ready, ever ready to encourage me and each one of us. और परमेश्वर कभी नहीं थकता, चाहे हम कितने भी बार क्यों ना उसके पास जाए, वो हर समय हमें प्रोत्साहित करने के लिए तत्पर होता है। God has given wonderful His promises to me and each one of us to encourage us time to time. परमेश्वर ने उसके अद्भुत ऐसे अभिवचन और प्रतिज्ञाएं हमें दी है, ताकि समय से समय हम उससे प्रोत्साहन पा सके। So more and more I meditate about what is happening in and around. More and more I meditate about what people said, what people did to me, and more meditate about my past failures. I may get discouraged. जितना अधिक मैं अपने बारे में सोचता हूँ, मेरे आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में सोचता हूँ, मेरे बीते हुए समय में क्या हो रहा है उसके बारे में, क्या हुआ था मैं जब असफल रहा उस विषय में सोचता हूँ, और लोग क्या कह रहे हैं, अगर इसी विषय के बारे में मैं सोचते रहता हूँ तो फिर मैं और निराश होऊंगा। More and more I meditate about my future needs and my children, yeah, and all those things. It can discourage us. और अगर मैं बहुत समय अपने भविष्य के विषय में, मेरे बच्चों के जरूरत के विषय में, इन्हीं बातों के विषय में सोचूंगा तो ये सारी बातें हमें निराश करेंगी। But when meditate about God and God's promises, that keep encouraging us. पर जब हम परमेश्वर पर मनन करते हैं और उसकी प्रतिज्ञाओं पर मनन करते हैं, तो वो बातें हमें प्रोत्साहित करते हैं। One good example is Abraham and Sarah. It is written Romans chapter 4, 17, 21. We no need to read there. और इस बात का एक अच्छा उदाहरण है अब्राहम और सारा, जिनके विषय में रोमियो की पत्री 4 अध्याय और 17 वचन में लिखा गया है। Instead of they are focusing their own impossibilities in their own flesh, they were focusing on God and God's promises. That promises kept them, encouraging them. और उनके शरीर में जो निर्बलता थी और जो असंभव था, इन बातों पर ध्यान न लगाते हुए उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर ध्यान किया, और इसी की वजह से वो प्रोत्साहित रहे। So the God's promises, when we think and meditate, there are so many good promises. Even the New Testament, He is so faithful to cleanse us, to forgive us, and He is so faithful. He will not allow us to go through beyond our ability, to tempt us beyond our ability. और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं बहुत ही अद्भुत है, और नए नियम में हम ऐसे कई प्रतिज्ञाएं पढ़ते हैं कि वो हमें शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य है, और वो कभी भी हमें ऐसे कोई परीक्षा में नहीं डालेगा जो हमारे सहने से बाहर हो। He causes all things good to me because we love Him. क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, वो हमारे जीवन में सारी बातों को मिलकर सिर्फ उससे कल्याण ही को उत्पन्न करता है। He'll remember never more my sins confessed. जिन पापों का मैं अंगीकार करता हूँ, वो इन पापों को फिर याद नहीं करता। He is so faithful to help us at time to time. वो समय
हर समय हमें मदद करने के लिए बहुत ज्यादा विश्वास योग्य है। And another thing, one picture we can think about Peter walking on the water. एक और चित्र जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वो है पतरस जब वो पानी पर चला। As long as his eyes was fixed on Jesus and his word, he was not drowned. जब तक उसने अपने आंखों को यीशु मसीह पर लगाया था और यीशु मसीह के वचन पर लगाया था, तब तक वो उस समुद्र में डूब नहीं रहा था। When he was looking around here and there, and that's where we can see him drowned. जब वो आसपास की हवा को देखने लगा, तब हम देखते हैं कि वो डूबने लगा। Same way, he drowned, but we get discouragement when we look when our eyes are not fixed on Jesus. Whenever we fix our eyes on various things in our life, that's where we can get discouragement. और इसी प्रकार जब हम भी अपनी आंखों को यीशु मसीह की ओर नहीं लगाते बल्कि अपने जीवन के भिन्न परिस्थितियों पर लगाते हैं, हम भी डूबने लगते हैं और हम भी निराश हो जाते हैं। That's why constantly we have to fix our eyes on Jesus, who is the author and perfecter of our faith. और इसलिए हमें हर समय अपनी आंखों को यीशु मसीह पर लगाना है, जो हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला और उसी का वो करता है। That's what we can read in Hebrews chapter 12 verse 1 to 3. We can read verse 3, brother. और हम इसी को इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय 1 से 3 वचन में पढ़ते हैं। हम तीसरे वचन को पढ़ेंगे। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। Yes, when we look into Jesus, the way he lived, the way he went through trials and challenges, how he faced, how he overcome, and that when we meditate about his sufferings, that encourages. जब हम यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान लगाएंगे, जब हम देखेंगे उसने किस प्रकार से वो जीवन जिया, कैसे उसने पापियों से इतना विरोध और छल सहन कर लिया, उसके दुखों को देखकर हम बहुत प्रोत्साहित होंगे। The more and more we meditate about Jesus and more eyes are fixed on Jesus, we will find constantly encouragement. जितना ज्यादा हम यीशु मसीह पर मनन करेंगे, जितने ज्यादा प्रमाण में हम अपनी आंखों को यीशु मसीह पर लगाएंगे, उतना ही हम प्रोत्साहन पाएंगे। Another thing I was thinking about, God has given is a Holy Spirit to be with us and within us all the time. एक और बात जिसके विषय में मैं सोच रहा था, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा हमारे साथ और हमारे अंदर हर समय रहने के लिए दिया है। We may not have people around us all the time. हर समय हम अपने आसपास लोगों को नहीं पाते। We may not find encouragement from people all the time. हर समय हम लोगों से प्रोत्साहन नहीं पा सकते। But God has given his own spirit in us, within us, to encourage us time to time as we hear today. पर परमेश्वर ने हमें अपने खुद के पवित्र आत्मा को हमारे अंदर दिया है ताकि वो हर समय हमें प्रोत्साहन दे पाए। We can read one verse for our encouragement, Acts chapter 9 verse 31. हम एक वचन को पढ़ेंगे हमारे प्रोत्साहन के लिए, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसका 21 वचन। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। Brother, Acts chapter 9 verse 31. सॉरी, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 31 वचन। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और समारिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। Here we see the Holy Spirit came to encouraging every brother sister in the church. और इंग्लिश में लिखा है पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन में बढ़ते गए और हम देखते हैं कि हर भाई और बहन को कलीसिया में पवित्र आत्मा प्रोत्साहन देता है। And what happens when I allow Holy Spirit to encourage me and each one of us, and church start growing and people get join more and more. और जब हम पवित्र आत्मा को ये अनुमति देते हैं कि वो हमें प्रोत्साहन दे, उसका परिणाम क्या होता है कि कलीसिया बढ़ते जाती है और लोग कलीसिया में जुड़ जाते हैं। And another thing God has given is word to encourage us time to time. एक और बात जो परमेश्वर ने हमें दी है वो है उसका वचन जो हमें प्रोत्साहन दे सकता है। We are called to encourage each other daily. हमारी ये बुलाहट है कि हम दिन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। But many times we may not be able to encourage others daily, or we may not find others able to encourage us daily. पर कई बार हम खुद दूसरों को हर दिन प्रोत्साहित नहीं कर पाते और हम ये भी देखते हैं कि दूसरे लोग हमें हर दिन प्रोत्साहित नहीं कर सकते। But definitely God's word and God's people in the word, there are Peter, John, Paul, and so many Old Testament men and great women, they always ever ready to encourage us when we go and read our word of God.
पर परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के वचन में जो लोग हैं, जब हम प्रेरित पौलुस और पतरस और इन सारे लोगों को और पुराने नियम के लोगों को देखते हैं, तो हर समय वो हमें प्रोत्साहन देते हैं। Yes, 2 Timothy 3:17 says the God's word is given to equip us, to encourage us to all the good work. और दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 7 वचन में हम पढ़ते हैं कि 17. 17 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें हर एक भले काम के लिए तत्पर करने के लिए वो योग्य है। Yeah, you can read Romans chapter 15 verse 4, brother. और रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय और उसका 4था वचन हम पढ़ेंगे। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। Yes, the God's word is with us whenever we are discouraged. I'm discouraged. So when we choose to read God's word and hear God's word, God's voice, we always can get encouragement. और पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया गया है, जब कभी हम इस बात को चुनते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और उसकी आवाज को सुने, तो हम हर समय प्रोत्साहन पाएंगे। That's why when we come together as a church, whenever there is a fellowship, there is a great opportunity. It's a privilege for us to come, to attend, to get encouraged. और इसलिए जब कभी हम कलीसिया होकर इकट्ठा होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और कि हम प्रोत्साहन पा सके। Yeah, there is one more word you can read, brother. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 58 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। Amen. God is so faithful to encourage us through His Word, through His Holy Spirit, and Himself is ready to help us all the time. और परमेश्वर हर समय तत्पर है उसके वचन के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, और खुद हमें हर समय वो प्रोत्साहन देने के लिए तत्पर है। Amen. आमीन। Thank God for what I heard. और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो बातें मैंने आज सुनी है। The two things, God is reminding me last 2 days. और 2 चीज़ें हैं जो परमेश्वर मुझे पिछले दिनों से याद करवा रहा था। It's one about Daniel and one about the people who were in the wilderness after they came out of Egypt. पहला जो है वो दानियल के बारे में, दूसरा उन लोगों के बारे में जो मिस्र से बाहर निकले थे। You see, when if you read Numbers 11, it says, these people started complaining, that's the complaints regarding what the God gave them, and in the verse 1 it says God was angry with them, displeased with them. और वहाँ पे हम देखते गिनती 11 अध्याय के अंदर हम देखते कि जैसे इस्राएली लोग जो है परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, और परमेश्वर की आग या परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का। And it says his anger burned so that his anger burned and there was a fire over there. और वहाँ पे लिखा कि परमेश्वर की आग उनमें ऐसी जल उठी कि उनकी परमेश्वर की आग उनके ऊपर उठी वहाँ पर। And the complaints was they remembered what they got in Egypt. They had fish, they wanted meat, and they said, we had a nice time in Egypt, but here only we have to eat manna. और वो किस बात के बारे में कुड़कुड़ा रहे थे कि वो याद कर रहे थे मिस्र के अंदर क्या उनको किस प्रकार का मांस और मच्छी और किस प्रकार की बातें वो याद कर रहे थे। And if you come to the second part, it's in Daniel. और जब हम दानियल के बारे में सोचते हैं, so Daniel, he was getting the wine, the whatever good food was there from the king. He was the good food, whatever the best was given to the king, they were getting that food. और दानियल के बारे में देखते कि शुरुआत से उसको बहुत ही उत्तम राजा का जो दाखमधु था, भोजन था, सब कुछ वहाँ पर उनको दिया जाता था। But he denied to have that food. लेकिन दानियल ने वहाँ पर वो भोजन को इनकार किया। One place where God is giving manna, that is food from heaven, and here, and they're complaining for the food of the earth. But you see here, the food of the earth was given, but he said, no, that will make us unclean, so we won't have that food. यहाँ पर हम उस अंतर को देख पाते कि पहला जगह जहाँ इस्राएलियों को स्वर्ग से भोजन मिलता था और उन्होंने उसका इनकार किया, उन्होंने बुड़बुड़ाया, और वहाँ पर दूसरी जगह पृथ्वी का उत्तम भोजन दानियल के सामने था, लेकिन उसका इनकार दानियल वहाँ पर करता है। You see, if that one decision to say, no, I won't have that food, it leads to another thing. First is,
Ashpenaz, who's the chief officer, his heart, God makes his heart kind towards Daniel. और वहाँ पर हम देखते कि दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा के भोजन से अपने आप को अशुद्ध नहीं करे, और वहाँ पर जो खोजा था उसको परमेश्वर ने दानियल के प्रति कृपा दी। Second thing, when he said, no, you test us, give us vegetables to eat, and you test us for 10 days, that after 10 days you feel like we are getting weak or something, we'll change, but just test us for 10 days, and he's ready for that. और दानियल उस खोजे से कहता है कि केवल हमें 10 दिन दे, हम सब्जियाँ साग पात खाकर हम 10 दिन के बाद हम अपने आप को तैयार करके तेरे सामने उपस्थित करेंगे। Second thing is here, he made the heart kind. Second, God helped the person to accept what they demand. They said, no, like, okay, if you said 10 days, we'll take it for 10 days. God made them agree that. और वहाँ पर हम देखते कि उस 10 दिन की जो उन्होंने जो वहाँ पर दिन मांगे थे उसके लिए उनको कृपा दृष्टि मिली, वो खोजा, वहाँ पर वो सहमत होता है उनके साथ। And the third part is after 10 days, these people were, still strong and they looked good, better than the people who were having the things food. और 10 दिन के बाद जब राजा के सामने आए तो और लोगों से और भी बेहतर और बहुत ही अच्छे ये दिख रहे थे। So saying in a year, they made God angry, but here Daniel made God, because he really pleased God. और वहाँ पर हम देखते पहले किस्से के अंदर जहाँ लोगों ने परमेश्वर को क्रोधित किया, लेकिन दानियल ने, दूसरे किस्से के अंदर हम देखते दानियल ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। So now that's thinking about one thing. So if I live, so what is my, do I really want to please God in the way I live, the way I. और मैं सोच रहा था कि जिस प्रकार मैं जीवन जीता हूँ तो क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने की चाहत या इच्छा रखता हूँ। Like one thing here is if I really have that heart, that God, I want to live as per plan, God will make things work for the best. और यदि हम परमेश्वर के सामने इस इच्छा को रखते हैं कि प्रभु तेरी योजना के अनुसार ही मैं जीवन जीना चाहता हूँ, तब परमेश्वर अपनी उत्तम योजना को हमारे लिए वो पूरा करेगा। He makes all hard things easier. और वो सारी बातों को हमारे लिए आसान करेगा। It doesn't mean like easy means, but he'll make it for me, easy for me to overcome those things. और मेरे लिए उन बातों के ऊपर विजय पाने के लिए परमेश्वर चीजों को आसान करेगा। Normally when you're hearing God was angry, but I think when I do something wrong, it doesn't make God angry, but it makes him sad. और यहाँ पे लिखा है कि जब परमेश्वर का क्रोध उन पर, प्रभु वहाँ पे क्रोधित हुआ, लेकिन जब मैं ऐसी कोई बात करता हूँ, चीज़ें जो परमेश्वर को पसंद नहीं आती, तो मैं उसे क्रोधित नहीं लेकिन उसे दुखी करता हूँ। So it's thing is what is my personal relationship with God? और यहाँ पर ये बात है कि मेरा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। Is that really I asked for the anointing of the Holy Spirit? और क्या मैं सच में पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगता हूँ? I really want to see that His name is God's name is glorified in everything that I do. और क्या मैं ये देखता हूँ कि जो कुछ मैं करता हूँ सारी बातों के अंदर परमेश्वर का नाम महिमा पाए। Sometimes when I fall, am I ready to get up fast, as Danny was sharing. और जैसे भाई डैरी ने कहा कि जब कभी मैं गिरता हूँ, क्या मैं तुरंत वहाँ पे निर्णय लेकर वहाँ से मैं उठ खड़ा होता हूँ? Or I like to be like a pig and just be in that dirt. और क्या मैं सूअर के समान उसी गंद के अंदर में पड़े रहना चाहता हूँ? It's all these things which I live every day define my life and my relation with God. और प्रतिदिन ये जीवन जो मैं जीता हूँ वो परमेश्वर के साथ मेरे रिश्ते को बताता है। Every day, as brothers were sharing, should be there a new day with a joy in our hearts. और जैसे हर एक दिन एक नया दिन है, हमारे हृदयों के अंदर एक नया आनंद वो लेकर आता है। A joy that comes from God. और एक ऐसा आनंद जो परमेश्वर की ओर से आता है। God is, He is there to always, come. If you have that relation, we know every time, God, how He is. He's always, He's forgiving God. He's comforting God. He's, every good thing. I normally see all good things are there in Him. और जो परमेश्वर के साथ संबंध में आकर मैं उन बातों को जानता हूँ कि वो कितना दया करने वाला, माफ करने वाला, इन सारी बातों को मैं जानता हूँ। But He has a father wants his child like me to be same like Him.
लेकिन पिता चाहता है कि उसका बच्चा या उसका बेटा उसके समान ही उसके स्वरूप में बने। So really, we pray that God will help us, and we also abide in Him. That the fruits that He is going to give, that we really see in our lives. और ताकि हम उसके अंदर बने रहे और जो फल वो हमारे जीवन में चाहता है वो फल हमारे जीवन में बने रहे। Amen.